Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I welcome you all in online support program. I am your computer lecturer Musharraf Naseem and I am from Army Public School and Colleges Askari 14 Rawalpindi campus. I hope you all are doing well. So, welcome in today's lecture. This is your second unit, and today we are going to have the lecture, that is lecture number 8, and we are going to go through to the page number 40 up till 43 of your textbook. And in today's lecture, we are going to understand what are the structures of C program, and the objective of today's lecture is that you all are going to be able to understand how we write a program in C language, what are the preprocessor directives, what is the main function, what is the body of the main function, and what are the comments which are used in C language, what are the types of comments. These all things are going to be discussed in today's lecture. So let's start with our lecture with the structure of a C program. So let's start with the structure of a C program. What is the structure of C program? What we have to write in the first stage, then what we have to continue with. So the very first thing that you can see in the slide is the preprocessor directives. As you can see the picture, it is clear in the screen. Preprocessor directives, and afterwards in the next statement you are you have to add the main function, and after main function you have to open the curly brackets which indicates the body of the main function, and in body of the main function you may have the local declarations, and you may have variety of statements, whatever the logic of the program up to do with the program. And after you are done with the statements, after you are done with the finishing of your program, you have to close the curly brackets. And after that you can see user defined functions, function 1, function 2, function 3. These are optional. When you are going to write your program with the user defined function or the predefined functions, you can have the separate body of the functions, and this is option to user. If the user wants to add the user defined function, he may add. ठीक है. उसके बाद to introduce the structure of the C program, consider a very simple program that will print the message I love Pakistan, and let's see in the next slide. So the screen you can see is the dev C++ environment, and this is the integrated development environment where we write our programs, we compile it over here, we execute it over here, we run it, and we can see the output in this particular environment. So this is the software dev C++. You are going to be install this particular software in your systems for the programming purpose that we are going to continue in next upcoming lectures, right? So let's see what the screen says. In this screen you can see a program, the program which is written, which is started with the green color, that is hash include, and then we are having angle brackets. The greater than and less than signs are known as angle brackets, which we are using in for adding the library files, that is stdio.h. stdio.h stands for standard input output header files. Then we having the void main void function. After that curly brackets open, and then we are having printf function. Printf function says with the small brackets, so whatever we have to print on the output screen we write in डबल कोट्स. ठीक है, हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखना है. और printf जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो भी मैसेज कन्वे करना होता है उसके लिए हेल्प करता है. उसको जो हम लोग printf फंक्शन कब कहेंगे, फंक्शन जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि फंक्शन इंडिकेट करेगा जब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स उसके बाद जो है वो इनक्लोज करेंगे. तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले करवाना होगा वो डबल कोट्स में मेंशन कर देंगे, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बंद हो जाएगी, एंड उसके एंड के ऊपर स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज किया हुआ है जो कि सेमी कॉलन है. शायद आपको पिक्चर में बहुत ज्यादा क्लियर नजर ना आ रहा हो, ये सेमी कॉलन है. और ये हम लोगों ने जो भी सी प्रोग्राम के स्टेटमेंट एंड करनी है, हर एक स्टेटमेंट के एंड के ऊपर हम लोगों ने सेमी कॉलन लगाना है. ठीक है.
और उसके बाद आपने क्या करना है, डबल करली ब्रैकेट्स जो हैं उसको बंद कर देना है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसको रन करने के बाद आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, आई लव पाकिस्तान जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स विच आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन से होंगे, जो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में, जो कि ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, हैश इंक्लूड वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो सारी स्टेटमेंट्स जो हैश इंक्लूड से स्टार्ट होंगी वो सारी क्या होंगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाएंगी। और उसके बाद है द मेन फंक्शन। वॉइड मेन जो है ये मेन फंक्शन है, इसके बगैर आपका कोई भी सी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन फंक्शन इज द सेकंड पार्ट एंड द बॉडी ऑफ द मेन। बॉडी ऑफ द मेन क्या है, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद जो करली ब्रैकेट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, वो 3 चीजें जो है हम लोगों ने एक बेसिक प्रोग्राम के अंदर जो है वो देखनी है। यानी कि आपका हर एक प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा उनमें ये 3 चीजें जो है वो मैंडेटरी हैं। अगर ये 3 एलिमेंट्स नहीं होंगे तो आपका सी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स टू द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते क्या हैं। मैंने सारा का सारा टेक्स्ट आपकी बुक से जो है वो ले लिया है। जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो मेरी स्लाइड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं उनको करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रही हूँ जो कि आपकी बुक में मेंशन है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शंस फॉर द सी कंपाइलर। एवरी सी लैंग्वेज प्रोग्राम कंटेन्स सर्टेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम. Before translating a C language program into machine language, the compiler of C language carries out the processor directives. These directives starts with the number sign which is hash. ठीक है, जो हम लोग number sign यूज करते हैं उसको हम लोग hash बोलते हैं. The most commonly used preprocessor directives are hash include and hash define. ठीक है जी. सो बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हो गए, आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाने वाली स्टेटमेंट्स जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाते हैं, या हेडर फाइल भी कहते हैं इसको. ठीक है, हेडर फाइल्स या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इनके 2 नाम होंगे. तो इनका बीच प्रोग्राम के अंदर ऐड करने का मकसद क्या है कि ये क्या है कि आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने से पहले जो है कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज क्या करता है कि वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को जाके देखता है. तो जो डायरेक्टिव्स जो है वो हैश साइन से स्टार्ट होंगे. उसके बाद जो है कंपाइलर क्या करेगा, जो हम लोगों ने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर फाइल का नाम लिखा होगा तो उन फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर कंपाइलर ने ऐड करवाना होता है. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की 2 टाइप्स होती हैं. एक टाइप होती है प्री डिफाइंड, जो कि हम लोगों को बिल्ट इन जो है वो मिल जाती है, जो कि हैश इंक्लूड से स्टार्ट होती है, उसको हम लोग प्री डिफाइंड कहते हैं. और उसके बाद हैश डिफाइंड जो है ये यूजर डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है. तो ये जो है हैश डिफाइंड के कीवर्ड से स्टार्ट होता है. ठीक है जी. तो इसकी एग्जांपल जो ब्लू कलर में आपको लिखी हुई नजर आ रही है, दैट इज हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. इट हैज द फॉलोइंग सेंटेक्स. याद रहे कि आप लोगों ने जब इसको डिफाइन करना है आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद आपने उसका सेंटेक्स लिखना है, देन आपने उसकी एग्जांपल मेंशन करनी है. तो इसका सेंटेक्स बता दिया है कि हैश सिंबल हमेशा लगेगा. इंक्लूड इंडिकेट करेगा ये यूजर डिफाइंड है या बिल्ट इन है. तो इंक्लूड बताएगा कि ये बिल्ट इन है, और अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड की जगह डिफाइन लगाती हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि मैं यूजर डिफाइंड जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड कर रही हूँ. आई होप दिस इज क्लियर. तो हैश इंक्लूड मीन्स के हैश इंडिकेट करेगा कि यहाँ से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट हो रहा है. इंक्लूड क्या डिफाइन करेगा, दिस इज द कीवर्ड. इंक्लूड इज द कीवर्ड विच रिप्रेजेंट्स दैट कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, ये बिल्ट इन है. उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स जैसे आपको नजर आ रही हैं, ग्रेटर देन के साइन के साथ हेडर फाइल नेम. तो यहाँ पे आपने जो भी हेडर फाइल इंक्लूड करवानी होगी उसका नाम एंटर करेंगे. हेडर फाइल को इंक्लूड करवाने के बाद आपने एंगल ब्रैकेट्स को बंद कर देना है. व्हेन द प्री प्रोसेसर इज कैरिड आउट बाय द सी कंपाइलर, इट विल सर्च फॉर द हेडर फाइल दैट इज रिटन विद इन द लेस देन सिंबल्स. ठीक है, तो उसके अंदर जो सिंबल्स आ जाएंगे लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल्स, एंड कॉपी इट इनटू द सोर्स फाइल. इन द अबव प्रोग्राम द हेडर फाइल stdio.h is used. It tells the C compiler to copy the stdio.h header file into the program. ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के लिए यूज की जाती है. The stdio.h header file stands for standard input output header. It includes the standard printf and scanf functions. अगर आप इसको ऐड नहीं करवाएंगे तो आपका ना printf का फंक्शन काम करेगा ना scanf का फंक्शन काम करेगा. ठीक है, इन द अबव प्रोग्राम द फंक्शन printf इज यूज्ड. ठीक है, therefore it is required to include the header file in the include preprocessor directives. So the second important point, which is the main function. Let's discuss what is main function.
मेन फंक्शन क्या है कि मेन का कीवर्ड लिखा होगा और उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग नजर आएगी जो कि इंडिकेट करेगा कि दैट दिस इज द मेन फंक्शन. What is main function? C program consists of one or more functions. A function performs a single well-defined task. ठीक है कि हर एक फंक्शन जो है यानी कि मेन फंक्शन की बात करें, उस मेन फंक्शन में हम लोगों ने कोई ना कोई वेल डिफाइंड टास्क जो है वो परफॉर्म करवाना है. यानी कि अगर हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई पर्पस होगा जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं. एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव द फंक्शन मेन विच इज द फर्स्ट सेक्शन टू be executed when the program runs. The general form of the main is, general form किसको कहते हैं, इसका syntax को कहते हैं. ठीक है, void main small bracket open, then we are having again void, again small bracket close. ठीक है, ये जो मैंने blue color में लिखा है void main void, इसका मतलब क्या है, ये void क्या चीज है. The word void before the function main means that this function does not return a value. इसको underline कर लें, ये आपको MCQ में पूछा जाएगा. आपको किसी भी टाइम पे किसी भी क्विज के अंदर जो है ये चीज पॉइंट आउट करके पूछी जा सकती है कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है. जो मेन के स्टार्ट में वर्ड आएगा उसका पर्पस क्या है और जो मेन के बाद में वर्ड आएगा उसका पर्पस क्या है. तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें. The void before the function main means that this function does not return a value, and the second void inside the brackets mean that it does not have any argument. ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. तो पहला वाला void ये कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इस फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना. हम इस प्रोग्राम के अंदर जो मेन फंक्शन यूज कर रहे हैं इसमें हम लोगों ने कोई चीज प्रिंट करवानी है या फिर हम लोग कोई इनपुट करवा रहे हैं या आउटपुट करवा रहे हैं, तो इस फंक्शन से हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे जिस मकसद के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड लगाया है. और इसके अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर वर्ड है वो क्या इंडिकेट करेगा कि इसका फिलहाल कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई इसका वेरिएबल नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द थर्ड पार्ट इज द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन. The body of the function main is surrounded by braces which are curly brackets. ठीक है, curly brackets जिसको हम लोग middle brackets भी कहते हैं. The left bracket indicates the start of the body of the function and matching right brace indicates the end of the body of the function. The body of the function in the program consists of a single statement that is printf which ends with the semicolon. ठीक है कि आपके किसी भी, अभी हम लोग फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने आई लव पाकिस्तान को प्रिंट करवाने के लिए कोड लिखा था, सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो मेन बॉडी है वो मेन बॉडी कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन के फंक्शन के फौरन बाद जो कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गई हैं उसके बाद जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो मेन बॉडी ऑफ द फंक्शन जो है वो कहलाएगी. ठीक है, अब उसके अंदर हम लोगों के पास सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट थी जो कि क्या थी, वहां पे हम लोगों ने एक printf का फंक्शन यूज किया था जो कि सेमी कॉलन के साथ एंड हो रहा था. तो printf इज द स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन. ठीक है, हम लोगों ने अगर कुछ भी आउटपुट करवाना होगा तो printf के फंक्शन के साथ आउटपुट करवाएंगे. अगर हम लोगों ने यूजर को कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए भी printf की स्टेटमेंट यूज की जाएगी. द टेक्स्ट टू बी प्रिंटेड इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, कि हम लोगों ने जो कुछ भी प्रिंट करवाना है, प्रिंट की कमांड देनी है, वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज होगा. अ स्टेटमेंट इन सी इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन, देयरफॉर अ सेमीकोलन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्रिंटफ स्टेटमेंट. दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द मैसेज आई लव पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन. जब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये क्या डिस्प्ले करवा देगा, आई लव पाकिस्तान, जो कि हम लोगों ने डबल कोट्स में लिखा था, एज इट इज प्रिंट करवा देगा. Next, we are having comments in C language. It is a good programming practice to add comments in program to make it easy for others to understand it. Comments in the source code are ignored by the compiler. हम लोग कमेंट्स क्यों ऐड करते हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को अच्छा करने के लिए कमेंट्स ऐड करते हैं. कमेंट्स का मकसद ये होता है कि प्रोग्राम के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि अंडरस्टैंड करवाना इंपॉर्टेंट है तो वो यूज़र के लिए या जो भी उस प्रोग्राम को चेक कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम लोग कमेंट्स ऐड कर देते हैं. कमेंट्स जो है वो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को या कुछ स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग खुद के लिए लिख रहे होते हैं, या खुद को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, या अगर हम लोग हमारा कोड कोई दूसरा देख रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम लोगों ने कमेंट्स ऐड करने होते हैं. तो कमेंट्स हम लोग प्रोग्राम के अंदर ही ऐड करते हैं. कमेंट्स का बेसिक मकसद ये होता है कि हम लोग उसको समझा सके कि जो हमने काम किया या जो हमने स्टेप्स लिखे हैं. तो इसका प्रोग्राम की लॉजिक के साथ, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के साथ, प्रोग्राम की बॉडी के साथ कोई कंसर्न नहीं होता. तो ये सिर्फ जो है हम लोग उसको ऐड कर रहे होते हैं जैसे हम लोग जो है किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, तो उसका कोई कंसर्न नहीं है उसके साथ. तो कंपाइलर हैज़ नथिंग टू डू विद द कमेंट्स. तो हम लोग कमेंट्स जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं. तो कंपाइलर जब आपके कोड को रन करता है तो उसको इग्नोर कर देता है. ठीक है जी.
So comments are added in programs when a fact is necessary to be brought to the attention of a program's reader. Generally, programmers write comments at the beginning of the program explaining the reader what the program is intended to achieve, and inside the program code where something is to be clarified about the structure of the program. ठीक है कि जहाँ पे जो कोड लिखने वाला है उसको कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो वहाँ पे वो कमेंट्स यूज कर लेता है, चाहे कि वो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कर ले या कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर जो है वो कमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं. सो देयर आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट. Let's see what the single line comment is. The double slash is used as single line comment. The syntax of the single line comment is, आपने करना क्या है, आपने डबल स्लैशेस लगानी है और उसके बाद आपने जो कुछ भी लिखना है वो कमेंट में आपने मेंशन कर देना है. एज एन एग्जांपल एग्जांपल में लिखा हुआ डबल स्लैशेस आपने ऐड कर दिए हैं, उसके बाद प्रोग्रामर आगे कॉलन लगा दिया है मोहम्मद अली. तो इसका मतलब ये है कि आप क्या बता रहे हो कि प्रोग्राम लिखने वाला कौन है, मोहम्मद अली है, उसको हम लोगों ने मेंशन कर दिया है डबल स्लैशेस के साथ. तो आपने भी जब सिंगल लाइन का मतलब ये है कि आपका कमेंट जो है वो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता. तो सिंगल लाइन कमेंट हमेशा डबल स्लैशेस के साथ जो है वो ऐड होगा. ठीक है. सिंगल लाइन के बाद आता है हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट. मल्टीपल लाइन कमेंट जो है उसके लिए हम लोगों ने एक स्लैश और एक स्टैरिक का यूज़ करना है और इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो ध्यान में रखनी है हमेशा. तो जब हम लोग मल्टी लाइन कमेंट लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट जो है वो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया है, स्लैश बैक स्लैश और उसके बाद स्टैरिक यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल, और उसके बाद हमने जो भी कमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 लाइन्स के अंदर लिखने के बाद उसको जब हमने क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए पहले स्टैरिक बंद होगा और उसके बाद बैक स्लैश जो है वो बंद होगा. ठीक है. तो स्लैश स्टैरिक इज यूज्ड फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट्स. कमेंट्स कैन स्पैन टू मल्टीपल lines as shown in the following example. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है जो कि ब्लू कलर में हाईलाइट कर दी गई है. इसका मतलब ये है कि ये एक से ज़्यादा लाइन में है, आप चाहें तो 10 लाइन्स में लिख सकते हो. तो इसमें कंपल्शन सिर्फ क्या होगी कि आपने बैक स्लैश स्टैरिक के फौरन बाद अपने कमेंट्स जो है वो लिखने स्टार्ट कर देने, चाहे वो जितनी मर्जी लाइन्स पे हो. और जैसे ही आपके कमेंट लिखना बंद करेंगे तो आपने कमेंट्स की मल्टी लाइन कमेंट्स की क्लोजिंग कर देनी है, जो कि किससे होगी, क्लोजिंग इसकी ज़रा ध्यान में रखिएगा, स्टैरिक पहले आएगा और स्लैश बाद में आएगी. ठीक है. तो बैक स्लैश स्टैरिक से स्टार्ट होगा और उसके अंदर आपने जितनी भी लाइन ऑफ कमेंट्स लिखनी है वो लिख देंगे और उसके बाद उसकी एंडिंग जो होगी वो स्टैरिक पहले एंड देन बैक स्लैश आ जाएगा. इस तरीके से जो है वो हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड कर सकते हैं. इसकी हम लोग जो है वो एक एग्जांपल एक प्रोग्राम में देख लेते हैं. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है. इसके अंदर हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए मैं वही चीज़ें बार बार दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखी. तो हैश इंक्लूड जो है, हैश इंक्लूड की पूरी स्टेटमेंट जो है ये क्या कहलाएगी, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ नेसेसरी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सी लैंग्वेज विच इज़ नोन एज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. एंड देन ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी आर हैविंग वॉइड मेन वॉइड, दैट इज़ द मेन फंक्शन. ठीक है. मेन फंक्शन में वॉइड क्या चीज़ है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. और उसके बाद ओपनिंग ऑफ द कर्ली ब्रैकेट्स हैं. इसके बाद हम लोगों ने इंट ए कॉमा बी कॉमा सम कॉमा प्रोडक्ट और उसके बाद सेमीकोलन लिखा है. यहाँ पे ये चीज़ें क्या हैं, ये वेरिएबल्स लिए हैं हम लोगों ने. और INT इंट जो है ये डाटा टाइप है. मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या चीज़ें होती हैं. इंट, डाटा टाइप, ए बी, सम, प्रोडक्ट, ये 4 हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए हैं. उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है. प्रिंट एफ का फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था. हम लोग अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें हम लोगों ने मेंशन करनी होती हैं वो हम लोग प्रिंट एफ के फंक्शन में लिखते हैं और हमेशा वो डबल कोट्स के अंदर होंगी और स्मॉल ब्रैकेट्स उसके इनक्लोज होंगी. ठीक है. और उसके एंड के ऊपर सेमी कॉलन, आपको हर एक स्टेटमेंट के एंड के ऊपर सेमी कॉलन नजर आएगा. सेमी कॉलन क्या है, दिस इज नॉन एज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर. और ये आपके बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आप ऐड करेंगे उसके एंड के ऊपर आपने सेमीकोलन जो है वो मैंडेटरी ऐड करना होगा. अच्छा, प्रिंट एफ के फौरन बाद आपके पास आ रहा है स्कैन एफ का फंक्शन. स्कैन एफ का फंक्शन क्या है, ये भी एज इट इज बिल्ट इन फंक्शन है. स्कैन एफ फंक्शन बेसिकली इनपुट के लिए यूज किया जाता है और प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो आउटपुट के लिए यूज किया जाता है. स्कैन एफ में क्या चीज नजर आ रही है, डबल कोट्स के अंदर आपको मॉड डी नजर आ रहा है. जो परसेंटेज का साइन है इसको हम लोग मॉड बोलते हैं. ठीक है. मॉड डी कॉमा मॉड डी कॉमा M% यानी कि एंड वाला साइन, इसको M% बोलेंगे. M%A कॉमा M%B और इसके बाद उसकी ब्रैकेट की क्लोजिंग एंड देन सेमीकोलन. इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने इनपुट करवाने हैं यूजर से 2 वेरिएबल्स विच इज A एंड B और उसकी वैल्यूज जब हम लोग इनपुट करवाएंगे यूजर से तो फिर वो A और B के अंदर स्टोर हो जाएंगी. उसके बाद हम लोगों ने यूज किया सम इक्वल्स टू A प्लस B और उसके बाद सेमीकोलन यानी कि हम लोगों ने जो वेरिएबल्स की वैल्यूज ली हैं उनको हम लोग ऐड करा रहे हैं. और उसके बाद है प्रोडक्ट.
प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए स्टारिक बी, ए स्टारिक बी इंडिकेट करेगा कि जो ए और बी की वैल्यूज जो है वो यूजर ने दी है, वो हम लोग जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के प्रोडक्ट के वेरिएबल भी स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट हम लोगों ने दो कैलकुलेशंस कर ली। कैलकुलेशंस करने के बाद हम लोगों ने आउटपुट फंक्शन जो कि प्रिंटफ का फंक्शन है उसको यूज करते हुए हमने क्या कर लिया, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो मेंशन कर इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब याद रहे कि जो कुछ हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आएगा। तो प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ है बैकस्लैश एन जो है वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। ये एस्केप सीक्वेंस है, जो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका क्या मकसद है। उसके बाद है सम इक्वल्स टू मॉड डी, ये भी मैं जाके आगे आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी। डबल कोट्स बंद और कॉमा के बाद सम, इसका मतलब ये कि सम का वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी रिजल्ट स्टोर हुआ है वो जाके सम इक्वल्स टू मॉड डी की जगह रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो जाएगी, सेमीकोलन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स बंद, आपका प्रोग्राम कंप्लीट। अब आ जाते हैं वापस बात अपनी कंटिन्यू करते हुए जहां से हमने छोड़ी थी। हम लोग बात कर रहे थे कमेंट्स की। कमेंट्स आपको ब्लू कलर के टेक्स्ट के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं। डबल स्लैशेस जो है वो लगाई हुई हैं, डबल बैक स्लैशेस आपने लगाई हुई हैं। दिस विल रीड टू नंबर्स, ठीक है। ये कमेंट है, इसका प्रोग्राम की सेंस के साथ, प्रोग्राम की लॉजिक के साथ कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो मल्टी लाइन कमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सिंगल लाइन कमेंट की जो है वो दी हुई है। आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, बैकस्लैश स्टैरिक के बाद आपने मल्टी लाइन कमेंट्स लिख देना और उसके बाद उसको एंड करने के लिए स्टैरिक बैकस्लैश कर देनी है। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपकी बेसिक्स के लिए, ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है दोबारा से मुलाकात होगी, ठीक है जी। So let's talk about the assignment for you. In your assignment you are having 2 questions और ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपने बताना है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। जैसे ही मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाई थी, आपने भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन ईच विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। आपने पहले कमेंट्स बताने हैं क्या है। आपको अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, आपने इसी लेक्चर में से जो स्लाइड्स मैंने मेंशन की हुई हैं एज इट इज बुक से मैंने कंटेंट उठाया हुआ है, तो आप वहीं से उसके आंसर्स जो हैं वो लिख सकते हैं। डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सप्लेन ईच विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इसका मतलब ये है कि आपने हर एक यानी कि सिंगल लाइन कमेंट अलग बताना है, मल्टीपल लाइन कमेंट अलग बताना है, अलॉन्ग विद देयर सेपरेट इंडिविजुअल एग्जांपल्स, ठीक है। तो ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, बाय बाय।